And today we are going to explore what are the questions that are asked in the interview process of Nirma University, Ahmedabad. ये तो टॉपिक आया फैंस। Fence. हाँ, It's a very extraordinary, weirdo topic, I must say. तो हम चेंज कर देते हैं, आप सेंस पे बोल दीजिए। ओवरऑल इस टीडीपी पीआई ने 30% ऑफ द सिलेक्शन रखा है इनके लिए। तो इस 12 मिनट्स में आपको फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्या पूछा, तो उसके बाद बहुत ऑब्वियस तो नहीं था ये क्वेश्चन पूछना, लेकिन उन्होंने संगम यूनिवर्सिटी से संगम कुछ और पूछ लिया इनको। फिर उसी से ही फिर एक और क्वेश्चन जनरेट करा उन्होंने। मेघनाथ था, उसको किसने मारा था। ओह वाओ। टोटल पैनलिस्ट कितने थे वहाँ पे? दे वर 4 पैनलिस्ट। ये आपका ग्रेजुएशन में क्या था फेवरेट सब्जेक्ट? जो उनके पास थे उन्होंने एकदम से क्वेश्चन रेज कर दिया कि आर यू अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स। If they are already ready with some good answer in their head, they will definitely give you a hint. Quite a tricky one, everybody. अगर वो आपसे भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, बी डिप्लोमेटिक है कि हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, पर उसकी प्रैक्टिस करके उसको प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं। Hello everyone, this is your host and dost Himanshu, and trying to simplify the processes of interview, we have our first interview from the latest edition of this actual interview experience series. I hope अगर आप prepare कर रहे हैं for any MBA, BBA or any kind of entrances for especially management quotas, this can be a big boon for you. Today we have Nirma University as a sample of actual interview experiences, because some candidate who will be going to deliver all the questions with his actual experience has just faced it yesterday on 8th of February, and Nirma University is supposed to be one of the best universities in BBA and MBA combinations. It has 250 seats for IPM, Integrated Program in Management, जिसमें BBA plus MBA 5 years का ये देते हैं आपको, but for MBA it has 300 seats, and I must say 50 seats are also reserved for HRM. So these kind of operations, international businesses, finance operations के अंदर जितने भी आपको curriculum मिल रहे हैं, Nirma can be one of your best choices to appear. And today we are going to explore what are the questions that are asked in the interview process of Nirma University, Ahmedabad. So this is our first attempt. I hope you give it some love. Let's welcome and tell us, how was your overall experience? Was it above average or below average? Sir, according to me it was good. It was good. Yes, sir. So at least I will enjoy all the questions that you will deliver. What do you think can be the first know-how of Nirma University entrance exam? For example, you must have given CAT. Yes, sir. तो CAT के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है आपका, तो CAT देने के बाद का बात करते हैं सीधा, क्या क्या राउंड्स थे इस इंटरव्यू प्रोसेस में? राउंड्स बताइए। Generally, sir, the main first round is TDP. Team Development Presentation. Theme development presentation. For those who don't know, it's kind of an extempore, a short presentation, micro presentation kind of stuff. They'll give you a topic and they will ask you to speak something on it for 1 or 2 minutes. So, were you given the topics for TDP in advance या फिर at the same time? No, sir. At the same time, they were the slips on the board, on the table, and I have to pick the slips. Fine. Let's take it in a bilingual form, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस अपनी प्योर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होगी. That's why मैं भी इसको थोड़ा हिंदी में रखने की कोशिश कर रहा हूँ. Please tell us, TDP के बाद सेकंड राउंड कौन सा था? Sir, second round था PI था. PI था, पर्सनल इंटरव्यू. Now everybody who don't know, there are many few colleges nowadays जो GD लेते हैं, ग्रुप डिस्कशंस. बाकी अब TDP, SP ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स आ रहे हैं. तो TDP PI इनका निर्मा यूनिवर्सिटी का राउंड था. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट. आप लोग जानने के लिए जरूर वेट कर रहे होंगे कि TDP का टॉपिक क्या था भाई, पहले वो बता. तो क्या था टॉपिक? सर, सबसे पहले जैसे टॉपिक मेरा चीट मैंने ली थी वहाँ से जी, तो निकाली, तो टॉपिक आया फैंस. फैंस. हाँ, FENC. FENC. It's a very extraordinary, weirdo topic, I must say. Yes, sir. My God. Fence मतलब वैसे आप सब समझते हैं, it's a bar, it's a territorial boundary that we make around some fields and खेत वगैरह के आसपास जो बाउंड्री होती है. But did you come with some ideas for it? No, sir. That time my mind was blank. हाँ, understood. सबके साथ हो सकता है, very natural, right? हाँ. बट जो इंटरव्यूअर थे वो बहुत फ्रेंडली थे, तो उन्होंने बोला कि आपको ये वर्ड फैमिलियर है, तो मैंने बोला दिस वर्ड सीम्स लाइक अनफैमिलियर और स्ट्रेंज टू मी. Very good handling, very good. सो उन्होंने बोला तो हम चेंज कर देते हैं, आप सेंस पे बोल दीजिए. हंस के उन्होंने स्माइलिंग फेस से बोला सेंस पे बोल दो. वेरी गुड, वेरी गुड. इट मींस TDP के टॉपिक पे उन लोगों ने फैंस की जगह इनको सेंस वाला टॉपिक इसलिए दिया ताकि वो चाहते थे कि ये बोले. एंड बिलीव माय फ्रेंड, दे आर आल्सो ह्यूमंस, दे नो दैट यू डोंट वांट टू लैग बिहाइंड द आंसर्स. तो वो आप चाहते हैं आपको बुलवाना, बस आपको हेजिटेशन नहीं रखनी है, राइट? In this interview process, preparation of interview experience for all of you, I must say there are many students who hesitate to deliver their best. But learn from him.
he has handled it with the word unfamiliar, so this topic seems unfamiliar. Can I have something next? And they passed it for sense. Were you comfortable to speak on sense? Yes, sir. Very Absolutely. good. So we can convert the topics of TDP and extempore in our own directions. Like sense को आपने किन किन directions के bullet points में तोड़ के बताया उनको? सर फर्स्टली सेंस को मैंने साइकोलॉजिकल टर्म में एक्सप्लेन करा. Very good. फिर उसके बाद में मैंने उसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया था. लाइक सेंस को डिवाइड करा मैंने कॉमन सेंस से, मेंटल सेंस से और फिजिकल सेंस से. फिर इन तीनों को मैंने एक्सप्लेन करा. फिर लास्ट में मैंने कंक्लूजन दे दिया था. वेरी वंडरफुल वंडरफुल आई मस्ट से. उन लोगों के पास ऑन द स्पॉट स्पीकिंग के लिए अगर इतना भी प्रेजेंस ऑफ माइंड आप रखते हैं कि आप उसको बुलेटेड या फिर स्ट्रीमलाइन फॉर्म में बता रहे हैं, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर देम एंड दैट्स अ गुड थिंग. वंडरफुल. नेक्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू. यस सर. तो पर्सनल इंटरव्यू में कितने क्वेश्चंस ओवरऑल आपका पूछा और कितना टाइम का चला वो इंटरव्यू? सर द ओवरऑल क्वेश्चंस जैसे 9 to 10 क्वेश्चंस थे टोटल. ठीक है. और जो टाइम लगा था वो 10 to 15 मिनट्स. 10 to 15 लाइक minutes. 2 मिनट्स टीडीपी था और 10 मिनट्स पीआई होगा. तो 12 मिनट्स का होगा. 12 मिनट्स. तो दोज हु डोंट नो, टीडीपी यहाँ पर 10% ऑफ द ओवरऑल प्रिपरेशन में काउंट किया जाएगा जब इनकी मेरिट लिस्ट बनेगी. 60% उसमें कैट का वेटेज रहता है एंड 20% पर्सनल इंटरव्यू का. तो ओवरऑल इस टीडीपी पीआई ने 30% ऑफ द सिलेक्शन रेट रखा है इनके लिए. 10% एक्स्ट्रा वो अकेडमिक्स के लिए कंसिडर करते हैं एवरीबडी. तो अगर आपका अकेडमिक्स अच्छा है तो यू हैव अ गुड एडवांटेज ओवर देयर एज वेल. वेल, तो इस 12 मिनट्स में आपको फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्या पूछा? फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने वही इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ओके. फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मेरी वो जो भी थी जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी थी संगम यूनिवर्सिटी से, तो वो चेक कर रहे थे. Very तो उन्होंने उसमें वर्ड पढ़ा संगम. तो उन्होंने बोला कि अभी संगम का क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग वर्ड में मतलब क्या है, Oh, very क्या good. चल रहा है संगम. एवरीबडी कैन यू गैस अ क्लू ये संगम का क्या चल रहा है इन दिनों ट्रेंडिंग न्यूज में? इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से दिया अपना Yes, पर्सनल sir. इंट्रोडक्शन. Yes, तो sir. उसके बाद बहुत ऑब्वियस तो नहीं था ये क्वेश्चन पूछना, लेकिन उन्होंने संगम यूनिवर्सिटी से संगम कुछ और पूछ लिया इनको. वर यू एबल टू हैंडल दैट? यस सर. आई जस्ट गैस कि महाकुंभ चल रहा है तो उससे रिलेटेड ही होगा ये. वेरी गुड वेरी गुड. सो एवरीबडी बी रेडी कि हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते पर उसकी प्रैक्टिस करके उसको प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं. दैट्स द ओनली एडवांटेज दैट वी टेक फ्रॉम आवर ओन प्रिपरेशंस ऑफ इंटरव्यूज फ्रॉम लास्ट 3 or 4 years. आई होप थर्ड क्वेश्चन जो था थर्ड क्वेश्चन था वो याद था होगा? अबाउट भीलवाड़ा. About आप भीलवाड़ा से हो तो बताओ भीलवाड़ा क्या है. ओरिजिन होम टाउन आप जहां से भी स्टूडेंट्स गेट अ गुड प्रिपरेशन फॉर इट. अबाउट भीलवाड़ा इनसे पूछा गया है. हो सकता है आप पुणे से रहते हो तो अबाउट पुणे आपसे पूछा जाए. एंड वर यू एबल टू हैंडल दैट एज वेल? यस सर, डेफिनेटली. वेरी गुड. सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दैट? आफ्टर दैट उन्होंने मेरे नेम से रिलेटेड पूछा था ओके. कि आपका नेम जो इंद्रजीत है तो उसका मतलब क्या है, राइट राइट एक्सप्लेन करो. फिर उसी से ही फिर एक और क्वेश्चन जनरेट करा उन्होंने कि जो मेघनाथ था उसको किसने मारा था. ओह वाओ. तो थोड़ा ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल टाइप का क्वेश्चन था. Right, तो right. So they went into the mythological concerns of his own name and nobody knows कि ये भी पूछा जा सकता है. Still mock interview देने से कहीं ना कहीं आइडिया लगता है. Yes, sir. Thanks to all the mock interviews that we have conducted, not only with us but also with ABCD classes, that they have supported us in this journey quite a nice time. What is the next one? द नेक्स्ट वन वाज लाइक व्हाई एमबीए. वाई MBA. तो उसमें आप क्या बोल रहे थे उनको? कोई बुलेट पॉइंट्स थे आपके पास तैयार? वाई, हाँ सर, वाई एमबीए में मैंने अपने पर्सनल रीजन और प्रोफेशनल रीजंस दोनों बता दिए वेरी कि गुड. मैं किस लिए बनना चाहता हूँ. Was it all over in English in the interview या फिर बीच बीच में हिंदी भी नो पूछी? सर, प्योर इंग्लिश. प्योर इंग्लिश. टोटल पैनलिस्ट कितने थे वहाँ पे? दे वर 4 पैनलिस्ट. 4 पैनलिस्ट. So they asked you what they wanted to ask. वन पैनलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक. ओके ओके. तो अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल व्हाटएवर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, दे आर ऑलमोस्ट आस्किंग फ्रॉम द HR राउंड्स ओनली, Yes. राइट? हाँ. सो डिड यू हैव एनी टेक्निकल क्वेश्चंस आल्सो? लाइक टेक्निकल का उन्होंने पूछा था कि आपका ग्रेजुएशन में क्या फेवरेट सब्जेक्ट. ओके. तो मैंने बोला कि मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट था, मार्केटिंग थी. फाइन. तो वो पैनलिस्ट क्वेश्चन पूछने वाले थे कि जो उनके पास थे उन्होंने एकदम से क्वेश्चन रेज कर दिया कि आर यू अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स. ओह. तो मैंने बोला यस सर. तो 3 कोई सी भी न्यूज बताओ ट्रेंडिंग जो अभी. ओह वेरी गुड वेरी गुड. वर यू एबल टू हैंडल द 3 न्यूज़ या एटलीस्ट 1 तो दिया ही होगा? सर 2 तो मैंने दे दी थी. फिर मतलब एक तो मैंने क्रिकेट के सेंस में बताई थी और एक जो न्यूज थी वो मैंने जो भी ट्रेंडिंग चल रही है ग्लोबल न्यूज बता दी थी. और थर्ड न्यूज जो थी फिर उन्होंने ही बोल दिया कि आप अभी जो पॉलिटिक्स में चल रहा है उसके सेंस में बताइए, Okay. जो अभी टुडे चल रहा है. If they are already ready with some good answer in their head,
दे विल डेफिनेटली गिव यू अ हिंट. फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला इनको पॉलिटिक्स के बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि आपके इंटरव्यू के दिन आई थिंक उस दिन आम आदमी पार्टी के इलेक्शंस चल रहे थे, दिल्ली इलेक्शंस, और आप वाज ट्रेलिंग बैक एंड बीजेपी वाज लीडिंग अहेड. सो स्टूडेंट्स, अगर आपके दिन इंटरव्यू के दिन कुछ ऐसा स्पेशल होने वाला है, बी रेडी कि आपको इसके बारे में पूछा जाएगा. अगर आपके दिन ही बजट डिक्लेयर हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली बजट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. बी रेडी. व्हाट वाज द एनी अदर क्वेश्चन दैट यू रिमेंबर? एनी अदर क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि लॉन्ग टर्म के बेसिस पे मतलब आपका स्पेशलाइजेशन क्या होगा और आप क्या लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे आपके? Long term goals. Be ready with short term, long term, and maybe 10 years down the line also we should be asking for you. Were you able to handle that as well? यस सर. Very good. जब मैं जा रहा था तो उन्होंने बोला डू यू हैव अनदर कॉलेजेस कॉल्स? Yes. Quite a tricky one, everybody. क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि आप इंटरेस्टेड हो क्या. Yes. तो इसका मैंने बस बेसिकली आंसर दिया था, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर कॉलेज. Right. बट उनको पता है कि परसेंटाइल आए हैं तो फिर ऑप्शंस तो रखूंगे, बैकअप तो रखना ही होगा ना. Yes. So everybody, अगर वो आपसे भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, be diplomatic enough, जैसा कि इन्होंने बोला कि so my first priority is your college, although I have filled some others as well. तो अपनी ऑनेस्टी भी बरकरार रह गई और अपनी जो इजी ट्रैप्स होते हैं उसमें आप फंसे भी नहीं कि अगर कोई दूसरा इतना अच्छा लग रहा है तो वहीं चले जाओ. यस सर. वेरी गुड. चलो गुड. सो ओवरऑल इफ यू थिंक, आई होप निर्मा की वॉशिंग बहुत अच्छी हुई है इनकी इंट्रोडक्शंस के अंदर और इंटरव्यूज में, पर अब ये सफेदी की झलक कब तक आएगी यही देखना बाकी है. आप वंडरफुल लोगों से बात करिए और जो आपको बेस्ट लगता है वो आंसर तैयार करिए. स्टूडेंट, दैट इज द परफेक्ट मंत्रा फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन. कि विदाउट प्रिपरेशन भी हम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, क्या ये कहना सही है लोगों का? नो सर, प्रिपरेशन तो चाहिए. प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन. कितना टाइम लगा आपको ओवरऑल तैयारी करने में? ओवरऑल तैयारी करने में लगभग मतलब अच्छे से करने में तो सर लगेगा 15 डेज तो लगेंगे. 15 डेज तो मिनिमम लगेंगे. और फिर इट इज एंडलेस. चाहो प्रैक्टिस ही करनी है. प्रैक्टिस ही करनी है. राइट. प्रिपरेशन वाइज इफ आई आस्क यू, स्टार्टिंग में वैसे मुझे पूछना चाहिए था, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, आप ऑनेस्टली बताएंगे किन किन रोल्स ऑफ मेंटोर्स का आपके ऊपर हाथ रहा? यू कैन नेम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, नो नॉट एन इशू. तैयारी आपने यहाँ से करी हो कहीं और से, आप फ्रेंकली हमारे साथ शेयर करिए कि आपकी एक्चुअल इंटरव्यू जर्नी में कौन कौन से रोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे? एज यू सी, एडु विंटेज एकेडमी, आई हैव प्रिपेयर्ड माय इंटरव्यू preparation from Edu Vintage Academy. Yes. ABCD classes. So Amit sir is also one of those who has a good combination for his studies and with us, and I hope he is also giving him good blessing for the selection. उनकी भी guidance थी sir. Right. Very good. So good enough. आपने जो भी expected questions रखे थे हमारे साथ discussion करते, hopefully वही पूछे गए हैं. Yes sir. And I am happy that you have cracked them, all of them. And I hope अब सिलेक्शन में बहुत जल्दी आपका नाम भी हमारे हॉल ऑफ फेम में आए. ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you sir. Thanks for a nice experience.